ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफ़िल में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शहर के चंद मकबूल तरीन शख्सियात में से आप एक हैं, विवेक बंसल साहब। विवेक भाई का मुख्तसर तारुफ यूं है कि आपकी स्कूलिंग आवर लेडी ऑफ फातिमा से हुई, फिर एएमयू से हिस्ट्री में मास्टर्स किया और फिर सियासत में आ गए। 2002 में अलीगढ़ सीट जीते और 2012 का इलेक्शन महज 500 वोटों से हारे। शहर की सियासत के अलावा नेशनल लेवल पर कांग्रेस के अहम लीडर हैं, राजस्थान में कांग्रेस की जीत के पिलर रहे और हरियाणा कांग्रेस में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। विवेक भाई, आदाब और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब मुझे भाई, ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा तमाम दोस्त अहबाबों के साथ आपको, और बस अल्लाह ताला से, परवरदिगार से यही ईद का ये पैगाम मोहब्बत का पूरे ख़ासतौर से हिंदुस्तान, दुनिया में तो फैले ही फैले, हिंदुस्तान में जिसकी कमी देखने को मिल रही है वो ज़रूर फैले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक भाई, मेरे इत्तेफाक हुआ आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने का, और जो मैंने आपको समझा उसके मुताबिक यू आर अ जेंटलमैन, वेरी वेल रेड पर्सन, पोइट एट हार्ट विद एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो अब इस मकाम पर, जिंदगी के इस मकाम पर, यू थिंक यू मेड अ रॉन्ग चॉइस टू चूज पॉलिटिक्स एज करियर? Well, since you asked me that I should be very honest and candid about my confessions and whatever I say, definitely at the end of the day, satisfaction is the most important thing. And I may not be sounding very high, but one of the objectives, not that I didn't seek power, whatever, we learned from the basically, as far as humanity was concerned, I sought power as a means to serve humanity. And that was one of the very, very important turning points in my life once I decided to get into politics. And politics took out of choice. It was just accidental. It was accidental choice, but accidental. Chance meeting with Rajiv Gandhi, and that prompted me and that motivated me to join politics. And that's a long story. To cut it short, yes, at the end of the day, I feel that a person like me who really means business, who really means what he says, and is looking for real communal harmony, is out of sync in the present day political arena, and who is pursuing, for whom integrity is one of the most important principles of political life. Communal harmony happens to be the other. Serving humanity is associated with that. So at the end of the day, I'm not very happy with the outcome of my endeavors, with the way I had been pursuing it in all sincerity, all diligence. Everything is, in the present scenario, result oriented. So result of my labor, the fruits of my labor, the result of my labor, hard work had been, if you analyze it, it's been virtually not at all in proportion to what I gave in public life, what I, at the cost of my family, and tried to permeate a message in the society of real. When I talked of communal harmony, it was not a political jargon for me. It was a conviction with me, and one of the reasons, despite the fact that people say that Congress is not is on the downside, the downslide. One of the reasons I didn't join any other political outfit was that how do I unlearn what I have learned throughout my life? That's very important. That's very important. That's very important. Yes. Yes. No doubt, politics, this power means a lot to me. It means a lot that it's one of the most important mediums, and everybody who pursues politics definitely hankers after power. So I'm not an exception to that, to be honest enough. True. Absolutely. अच्छा विवेक भाई, मैं ये कह रहा था कि आपको शहर का तकरीबन बच्चा जानता है,
और बतौर विवेक बंसल आपसे इस शहर के दोनों कम्युनिटीज के लोगों को बेइंतहा अकीदत है। यानी बहुत कम मैदान में सियासी लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने अपने इलाकों में इतने पॉपुलर होते हैं, और हमने ये देखा है कि आप हर इंसान के, छोटे चाहे वो जमालपुर की कोई तकरीब हो या शाहजमाल का हो, या फिर आप इधर के इलाकों में हो, कहीं पे खुशी का मौका हो या कहीं पे कोई मौत हो, आप वहां पे हाजिर रहते हैं। लेकिन जब उसको ट्रांसलेट करने का मौका आता है अवाम के सामने, इन रियलिटी इस इलेक्शन में आपको वोट नहीं दिया गया। डू यू फील बिट्रेड? क्योंकि वोटिंग जो है वो सांप्रदायिक बेसिस के ऊपर जो है वो हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भी कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप इस सूरत हाल में, जी देखिए, आपने ये सवाल रखा कि आई फील बिट्रेड। डेफिनेटली I would be dishonest if I say I am not. I am very, not only betrayed, I am very disillusioned with the system, with the electorate of this city, historic city. Historic, I mean to say, because of its historical contribution and contribution of Sir Sayyid Ahmad. So it has not given me not dividends in the sense, it has not reciprocated the affection and the love, the message which I tried to spread around, cutting across caste or religious lines. And when I say that I am disillusioned, I am not disillusioned with one segment, I am disillusioned with the electorate as such. Because for them, paramount is of importance. These things are insignificant. That, as you said, that I am present everywhere and trying to help out everybody, cutting across caste or religious lines. These, I think, that these have no meaning at all in the present scenario when we talk of India's democracy, which is more than 73, 4 years. I think we have come a long way since all these things had been prevalent. We should have come out of this. We should have come out of this communal flagrations or conflagrations or communal bitterness. And on the contrary, what I notice is it is getting more and more deeply entrenched today in the society. So that's the most unfortunate. Yeah, that's very unfortunate. That portends not at all well for the country. I'm not sounding very pessimistic. I wish, that India has a vibrancy and it has been able to face lots of challenges after independence, and maybe it comes out of this morass, this crisis which is prevailing in the country at the moment. Inshallah, let's hope so. विवेक भाई, मैं ये कह रहा था कि देखिए, कुछ जमाने पहले तक सियासत के भी कुछ उसूल होते थे, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि सिर्फ सियासत, सिर्फ मजहब, और ऐसा लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। और इवन जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, इंक्लूडिंग राजीव गांधी, राहुल गांधी साहब, उनको भी अपनी जो हिंदू आइडेंटिटी है वो फ्लॉन्ट करनी पड़ रही है, टू कन्विंस द अदर कम्युनिटी कि भाई जो हमें दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है, हम भी उतने ही हिंदू हैं जितना आप हैं। तो यहाँ से हमारे मुल्क की सियासत का रास्ता अब कहाँ जा रहा है? देखिए, आपने जो कहा कि Hinduism, he is trying to portray himself as a Hindu. Till the time, if he portrays himself as a Hindu, I don't think there is anything wrong in it. Till the time, what Hinduism preaches, he is strictly adhering to it. He's in the name of Hinduism, he is not trying to belittle other religions. He's in the name of religion, Hinduism, what Hinduism talks about respecting other religions, giving a space to all other religions. I think if that is the spirit in the name of Hinduism, that's very welcoming. जी नहीं, वो पहले मतलब उसका जो जुज है सवाल का वो ये है कि इस तरीके से जो प्रेस कवरेज वगैरह, क्योंकि मजहब जो है वो बहुत ही जाती चीज है, और पहले इस तरह से ये नहीं दिखाया जाता था कि वो उस मंदिर में गए और फिर उनके
जो है वो सारे जो रिचुअल्स हैं वो सब कराए गए। तो अब जो है वो बाकायदगी से, इसलिए कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल माइलेज उससे हासिल किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं जो दूसरा एक नैरेटिव चल रहा है उसके आगे प्रेशर में कुछ लोग जरा से ढीले पड़ गए हैं। खैर आपकी बात इससे मैं मुत्तफिक हूँ। जी नैरेटिव जो चल रहा है आज, बहुत सी चीजें हैं जो राहुल जी उससे इत्तेफाक नहीं रखते। जी जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो कहते हैं कि नैरेटिव ये है, यू हैव टू, वो है। बहरहाल इसको नकार भी नहीं सकते। आज जो कंट्री में जो माहौल है, आज कहीं ना कहीं एक नैरेटिव ये चल रहा है कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को वो तरजीह नहीं दी या हिंदुत्व को नकारा, मैं जी कहूँगा। उसका ये एक रेस्पॉन्स कह सकते हैं। जी नॉट डेट कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से डिविएट कर रही है। आइडियोलॉजी आज भी वही है। आप देखिए किसी भी इशू पर, बीट में सीएनआरसी की बात हो, कोई भी इशू हो, उससे माइनॉरिटी का कोई लिंचिंग का हो या कोई भी एट्रोसिटी, आई थिंक इट्स राहुल गांधी ओनली हु इज रेजिंग द वॉइस, कांग्रेस पार्टी व्हिच इज रेजिंग द वॉइस। पीपल who have received overwhelming support of the minority are keeping quiet. How do you define that? नहीं, I'll come to that, I'll come to that, क्योंकि जो यानी उनका जो रिस्पांस है वो भी लोगों का इल्जाम यह है कि अपने कंफर्ट जोन में से है। बट राइट नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन। जो वो नैरेटिव की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है अचानक से पिछले 7-8 साल में कि इस मुल्क की तमाम परेशानियों की जड़ जो है वो मुसलमान पॉपुलेशन है। फिक्स देम एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो यानी इस हद तक ये हो गया कि जो हमारे यानी कांग्रेस के जो दिग्गज लोग थे, हिस्टोरिकल फिगर्स थे, इवन टू द एक्सटेंट के महात्मा गांधी, उनके कैरेक्टर्स और जवाहरलाल नेहरू के कैरेक्टर्स को रीडिफाइन किया जा रहा है। अलीगढ़ में ही ऐसा हुआ था कि उनका पुतला बना करके उनको गोली मारी गई थी। तो कांग्रेस भी जो है वो बहुत एग्रेसिवली इस चीज को नेगेट नहीं कर पा रही। देखिए, जहां तक इसको नेगेट करने का सवाल है और जो रीडिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये साजिश चल रही है और समय समय पे इसको अपना जो उसके लेके इख्तलाफात हैं वो जाहिर भी किए जा रहे हैं। पर आज एक मुल्क का नैरेटिव जो उसमें कम्युनल लाइंस पे जिस तरीके से कर दिया गया है, आपने खुद कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एक इस तरीके से दिखाया गया है कि आपने कहा कि मुसलमान को हर चीज के लिए मुल्जिम ठहराया जा रहा है कि अगर ये फैक्ट है कि ये इस तरीके का नैरेटिव तैयार किया है उन राइटिस्ट फोर्सेस ने, फंडामेंटलिस्ट मेजॉरिटी फोर्सेस ने, जो नहीं देखना चाहते, जो इस आइन से इत्तेफाक नहीं रखते, जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जो एक पॉलिसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परस्यू की, उसके बाद जो भी उनके सक्सेसर्स कांग्रेस के आए, बाय एंड लार्ज स्लाइट डेविएशंस, that policy had been pursued. So they are not in sync. They don't agree with जो present day forces हैं। And मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मुझे भाई, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अकलियत को भी एहसास करना होगा कि हिंदू एकदम से इतना कम्युनल क्यों हुआ जी। आप 20 साल पहले ले जाइए, 20-25 साल पहले बाबरी मस्जिद शहीद हुए थी, उसके बाद 5 सूबों में चुनाव हुए थे, एक भी सूबे में बीजेपी की सरकार नहीं आई। उसका क्या मतलब है कि उस समय का मेजॉरिटी कम्युनिटी सेकुलर थी। जी जी। आप बाय एंड लार्ज देखिए, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हर कम्युनिटी में होती हैं, हर रिलीजन्स में होती हैं, ट्रू, बट टिल द टाइम दे आर इन अ माइनॉरिटी, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। आज वो माइनॉरिटी में नहीं है जी। आज दे आर इन अ मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी में ना भी हो, दे आर वेरी वोकल एंड एग्रेसिव। तो कहते हैं ना कि एक शैतान 10 शरीफ लोगों पे हावी होता है, तो वो आज हालात हो रहे हैं। ये यानी महज सत्ता पाने का एक बहुत आसान तरीका है या वाकई में कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? देखिए, दोनों चीजें
हैं, आपने कहा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ये सहारा भी, ये एक जिसे कहते हैं ना मुंह खून लग गया है कि इसके सहारे सब कुछ आप कर दो। आज आप महंगाई है, ये सब चीजें जो आज बेरोजगारी है बेइंतहा, आज हर चीज आज आसमान को छू रही है, इन्फ्लेशन हो, वो सब ढक जा रहे हैं। आप कोई कम्युनल इशू उठा दीजिए और सब कुछ आदमी का दिमाग उधर ही चला जाता है और वो भूल रहा है। आज इस चीज को लेके आदमी मुतमईन है कि साहब कुछ भी हो माइनॉरिटी को कंट्रोल में ले आए, ये बात होती है। तो जब इस तरीके का नैरेटिव चल रहा हो तो ये सब चीजें लोग बहुत कहते थे। यूपी में चुनाव हुआ कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं चुनाव में जाता था, गांव में जाता था कि गाय बेसहारा गांव को छोड़ दिया जाता है, फसलों को बर्बाद करती है, बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या ऐसा जादू हुआ, क्या नैरेटिव दिया, सही बात, कम्युनल लाइंस पे दिया और वो कामयाब रहा, वो कामयाब रहा। तो ये तो एक इन्हें बहुत आसान तरीका मिल गया है। तो उसको तो देखिए, देयर आर टू थिंग्स, एक सत्ता का लालच भी होता है, दूसरे मुल्क के बारे में भी हम सोचते हैं। As far as my politics is concerned, despite whatsoever benefits may accrue to me on a particular stand and for a particular problem, I have always weighed it in terms how it would affect the society. माशरे पे इसका क्या असर होगा, अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो मैंने बहुत उस चीज से अपने को खींचा, चाहे कितना भी सियासी फायदे की मुझे उम्मीद रही हो, क्योंकि मेरा हमेशा मैंने बहुत तरजीह, मतलब ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट्स कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, माय कांस्टेंट, I have strived, my constant endeavors had been that I should be able to make an impact on the society. What Gandhi stood for, what Pandit Jawaharlal Nehru, he was an epitome of secularism for this country, who defined secularism, and no better example can be than Pandit Jawaharlal Nehru as far as when we talk of secularism. अच्छा विवेक भाई, आप बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जो आलाकमान है कांग्रेस की। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, जैसे आपने वो कहा था कि कोई भी मसला हो, सीए का हो, एनआरसी का हो या कहीं पे भी, लेकिन जो कांग्रेस का जो रिएक्शन आता है वो बड़े कंफर्ट जोन से आता है। यानी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस डजंट हेल्प। और अब जो सूरत हाल है, जो लोग यानी मुखालिफ खेमे के जो लोग हैं जो सड़कों के ऊपर हैं, तो दे आर फिजिकली मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट। तो कांग्रेस इस तरीके से जो लोग सोच रहे हैं वो इस तरीके से तो रिवाइव नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि अब तो यानी प्रशांत किशोर साहब से भी निगोशिएशन चल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग करना है इसको रिवाइव करने के लिए। तो इससे आप लगता है कि जो यानी लॉस हुआ है या जो कुछ अपनी पकड़ छोड़ी है लोगों में, उससे वो रिवाइवल हो जाएगा? देखिए रिवाइवल होगा। देखिए दो चीजें हैं, आपने कहा कंफर्ट जोन, मैं किसी हद तक इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ, पर लेकिन ऐसा नहीं है, सड़कों पर भी है। सीएनआरसी में प्रियंका जी निकली हैं, हम अपनी एतबार से बताएं, हम अलीगढ़ में निकले हैं, और पर लेकिन आज तरीके से ये सरकार जमहूरियत के जो एक पैमाने हैं उससे उसको नहीं निभा रही है। आप तुरंत कुछ करते हैं, आप पे मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, सेडिशन लॉज हैं, तरह तरह के जो ये सब, ये these things are so commonly being used, sedition laws and तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं लीडरशिप को आक्रामक एग्रेसिव रोल में आने से कहीं हो सकता है। मतलब ऐसा मैं, और आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत भी हूँ कि वी शुड डिस्पाइट ऑल दिस, ये एक एक्सक्यूज नहीं है, बट ये हो सकता है, these things are there, but at the same time they should not hold us back from taking a stand what we are supposed to. एग्जैक्टली वही जो दबे अल्फाज में हलकों में, जो सियासी हलके हैं उनमें जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि मेरे ख्याल से बहुत थोड़ी सी और एग्रेसिव अप्रोच दरकार है बनिस्बत इसके कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स दे दिए। अच्छा विवेक भाई, 1947 के बाद
जो मुसलमान हिंदुस्तान में बचे थे वो विदाउट एनी डाउट दे हैव बीन वेरी लॉयल टू द कंट्री। और ये लोग जो है वो पिछले 70-75 सालों से अपनी पॉलिटिकल और सोशल आइडेंटिटी को तलाश कर रहे हैं, और सियासत में तो पिंग पोंग बॉल बने हुए हैं बेचारे, कभी इधर कभी उधर जो है। बावजूद इसके कि तमाम एपीजे अब्दुल कलाम, बिस्मिल्लाह खान, मीर अब्दुल हमीद, दिलीप कुमार, इरफान पठान, इरफान खान, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके नरसंहार की बातें बड़े खुलेआम पे हो रही हैं। लोग जो है वो इंडिया इज बीइंग कंपेयर्ड टू जर्मनी ऑफ 1930s, बड़ी सेनाएं बन गई हैं और हथियार जो है बाकायदगी के साथ लहराए जा रहे हैं। तो क्या बुनियादी गलती क्या हो गई? देखिए, जो क्रीम थी, इंटेलिजेंसिया थी, वो तो माइग्रेट करके चली गई। यहाँ पे जो लोग बचे थे वो थे जिनके पास खोने को या कुछ नहीं था, या फिर बहुत सारी जमीन जायदादें थी जिनको वो छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो जो लोग बचे थे उनकी क्या गलती है कि उन्होंने सालों साल कांग्रेस के साथ रहे वो, और फिर 1992 में या पोस्ट बाबरी मस्जिद वो डिसल्यूजन हुए। तो क्या वजह है कि मुसलमान इस सूरत हाल में है? देखिए, मैं आपने जो सवाल किया, पहले उस सवाल का जवाब दूंगा कि क्या वजह है कि आज जो मुस्लिम आज यहाँ बाई चॉइस रुके, नॉट बाय कंपल्शन, आज उनको क्यों शिकार बनाया जा रहा है या उन पे क्यों निशाने पर लाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस की कमी मैं मानता हूँ। कांग्रेस ने इन फोर्सेस को अंडर एस्टिमेट किया। अगर मैं पढ़ता हूँ फ्रीडम स्ट्रगल के समय भी 1942-47, सावरकर का रोल, हिंदू महासभा, आरएसएस, वो उस समय भी धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, एक नफरत फैला रहे थे। हमें कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार रहना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका अपना एक करिश्मा था, और रिजल्ट्स इलेक्शन के बहुत पॉजिटिव आते थे, तो उन्होंने इसको नजरअंदाज कहिए या उसको इतना सिग्निफिकेंट नहीं समझा। ये सोचा कि ये लोग बहुत साइजेबल माइनॉरिटी में हैं, बहुत मिनिस्क्यूल हैं, और ये लोग कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। गलती एक ये हुई पंडित, और ये सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स के दौर में हुई। हम लोग अगर इसके लिए आगा हो जाते, आगे के खतरे को अगर हम पहचान लेते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। I feel this way that we are equally responsible for this hydra-headed monster in the shape of communal atmosphere, which is raising its. We are responsible for it. Exactly, and I believe कि इसमें मुसलमानों की भी ये रही कि साहब एकेडमिक स्कॉलरशिप ना तो इन्होंने प्रोड्यूस की और ना कोई पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें अपनी एक बराबर के वजन की कोई अपनी। देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा मुजीब भाई, माइनॉरिटी को मैं इसलिए गलत कहता हूँ, मतलब गलती की जो बात कहता हूँ। आपने कहा लीडरशिप नहीं बिल्डअप, लीडरशिप भी बिल्ड हुई। लीडरशिप वो बिल्डअप हुई जिसको फंडामेंटलिस्ट लीडरशिप, आपने उसको फॉलो किया। आपने विवेक बंसल सेकुलर हिंदू को तो पसंद किया, आपने सेकुलर मुस्लिम को पसंद नहीं किया। सलमान खुर्शीद के लिए आपने ये शिकायत की कि उनकी तो बहनों की शादी साहब इंटर रिलीजियस हुई है। ये आपकी अप्रोच। आपने देखिए सेकुलर अप्रोच, आपको भी यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी लार्ज हार्टेड एंड अबव रिलीजियस कंपल्शंस, देन यू टू हैव टू बी, यू नो, आपको भी अपना सोच उसी तरीके से, आपको अपने लीडर सेकुलर चुनने होंगे इंतखाब जो। और आज देखिए वही वक्त आ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, माइनॉरिटी के जहां मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी के वो लीडर चुने जाएंगे जो दूसरे मजहब से वोट ले सकेंगे। दैट अप्लाइज हिंदूज को भी, दैट अप्लाइज फॉर पर्टिकुलरली फॉर माइनॉरिटी। मैंने जयपुर में एक एक्सपेरिमेंट किया था और टिकट ऐसे आदमी को दी जिसकी गुर्बत मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से थी। वो सीट हम कभी नहीं जीतते थे, और वो बंदा सीट जीता क्योंकि उसे 20-25 हजार मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट मिले। अब वही वक्त आने वाला है। तो अपने आप ये एक ट्रांजिशन, एक मेटामॉर्फोसिस हो रहा है डेमोक्रेसी का, और वो वक्त आएगा कि मुस्लिम्स या माइनॉरिटीज भी रियलाइज करेंगी
कि we have to be large hearted, we have to reach out to the majority community, and we should not be selecting our candidates on narrow religious lines. Whosoever delivers the goods, it's not necessary that Mujib is to be the leader of the minority community. If Vivek Bansal stands by minority community and he raises his issue, Vivek Bansal should be equally makbul, acceptable to minority community. Are you optimistic of the future? Yes, I am. Because आप देखिएगा धीरे धीरे जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स हैं उनका सिलेक्शन कम होगा. मैं अलीगढ़ का देखता हूँ, अलीगढ़ आप देखिएगा अब आने वाले वक्त में. जी. अच्छा विवेक भाई, एक जो है मुख्तलिफ बात करते हैं थोड़ा सा इस चीज से हटके. आप को मैं समझता हूँ कि आप बहुत पढ़ते हैं. आपका किताबों का कलेक्शन भी मैंने देखा, और बल्कि आप पोइट्री पढ़ते भी हैं. सुना यह है कि आप लिखते भी हैं. कोई नज्म ऐसी है जो आपके दिल के करीब है? देखिए अहमद फराज का मैं एक शेर पढ़ देता हूँ. जी. रात नाम नहीं लेती खत्म होने का, यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का. क्या अब बात. इसका माने आप, रात नाम नहीं लेती खत्म होने का, यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का. नहीं, इंशाल्लाह सूरज जो है ये this can be taken in my context or in the wider context of this country, of the political atmosphere which is prevailing in this country. और चंद मैं पंक्तियां लाइंस पे पढ़ देता हूं जो आज के जो बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारा का क्या होगा. आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है. मुल्ला पिए पंडित पिए, क्या पानी का कोई मजहब होगा. इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे. शिव की गंगा भी, सॉरी, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे, शिव की गंगा भी पानी है. सूरज वो ऐसे ही है कि क्या सूरज भी नया बनाएंगे. इन नस्लों का करे जो बंटवारा, वो कौम का रहबर नबी है. क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है, क्या खुदा ने मस्जिद तोड़ा है. तो ये है आज जो सियासत जो चल रही है वो इस पे चल रही है. ये सब चीजें इस कंट्री की जो लीगेसी है उसकी कॉन्ट्रेरी चल रही है. बस दुआ है, प्रार्थना है प्रभु से, अल्लाह से दुआ है. ईद के मुबारक मौके पे आपसे गुफ्तगू हो रही है कि हम लोगों की जो आवाज दब जाती है वो बुलंद हो, लोगों तक पहुंचे, उसे मकबूल करें, उसे कबूल करें, और एक बेहतर हिंदुस्तान जिसका तसव्वुर हमारे पुरखों ने जो किया है वो वैसा हिंदुस्तान तामीर कर सकें. यही दुआ है. This I earnestly wish, and I had been fighting all along my life for this. That's very true, Vivek bhai. It was wonderful talking to you. और ये कि बहुत सारी दुआएं आपके साथ. देखिए वो वाला वो शेर है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. तो ये जो इलेक्शन का रिजल्ट था बहुत डिसअपॉइंटिंग था, खासतौर से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी लोग जो थे वो ये मान के चल रहे थे कि ये इट वाज अ गुड चांस के आप इसमें जीतेंगे. बहरहाल रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह गए हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तो सर आप प्लीज सर रिपीट कर दीजिए, आई कुड नॉट हियर इट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी मशहूर नज्म है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और फिर किसी दिन मुलाकात होती है इंशाल्लाह. यू टेक केयर और खुदा हाफिज. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. खुदा हाफिज. भाई फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू.